السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں. ہم آج اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے چند نام. ہمارا اگلا سیکشن ہے اللہ کے خوبصورت نام، اور آج ہم انشاءاللہ 2 کی جگہ 3 نام سیکھنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تینوں کنیکٹڈ ہیں. جو 3 نام ہم آج سیکھنے والے ہیں وہ ہے الخالق، الباری، المصور. اس سے پہلے کہ سٹارٹ کریں ایک بار ہم شروع سے ریویژن کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. اب اس کے بعد الخالق، الباری، المصور. ٹھیک ہے. الخالق کا مطلب ہے دا کریٹر، بنانے والا، تخلیق کرنے والا. آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق. ہاں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا بنانے والا ہے. ساری چیز خود سے بن گئی؟ نہیں، خود سے کچھ نہیں بن سکتا تھا. یہ ٹیبل خود سے بن گیا؟ خود سے ریڈ کلر کا بن گیا؟ ہاں، خود بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انرجی دی اور انہوں نے بنایا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، تب جا کے ان لوگ نے ٹیبل اور اس پہ کلر کیا. یس. تو ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ جو چیز بنا رہے ہیں نا، تو وہ ہماری کمال کی بات نہیں ہے. جس نے ہمیں بنایا یعنی اللہ، اور جس نے ہمیں طاقت دی، جس نے ہمیں سوچنے کی کیپیسٹی دی، جس نے ہمارے اندر کریٹیوٹی دی، تو وہ ہے جس نے ہمیں یہ دیا. تو ہم بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تو کچھ دیکھے بغیر بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بنایا. ہم تو دیکھ دیکھ کے بناتے ہیں. ہم نے ہاتھ دیکھ کر کے کرین بنایا، ہم نے ایروپلین بنایا کسے دیکھ کر؟ برڈ کو دیکھ کر. اور ہم نے سبمرین بنایا مچھی کو دیکھ کر، ویسا ہی ٹائپ کا شیپ بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو شروعات میں بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ساری چیزیں کمال کی ہے. مطلب کمال یعنی ایکسلنٹ ہے. ساری چیزوں میں کسی میں بھی کوئی فالٹ نہیں ہے. اب دیکھو، سوچو عبداللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب یہ جو منہ ہے یہاں ہے، اگر منہ پیچھے ہوتا یہاں پہ تو کیسے کھانا کھاتے؟ بتاؤ. ایسے ڈالو، اندر ڈالو، ایسے، اور پھر ایسے ڈالتے، پھر وہ صحیح جگہ پہ آنے کی جگہ رانگ جگہ پہ بھی جا سکتا ہے. یہاں پہ تو ہم لوگ دیکھ کے اچھی طرح سے ڈال دیتے ہیں. ہاں، پھر سونے میں پرابلم آتا کہ منہ کے اوپر سو گئے آپ پورا. ہاں، بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بنایا کتنا پرفیکٹ بنایا. اگر ہاتھ اوپر ہونے کی جگہ پاؤں اوپر ہوتے اور ہاتھ نیچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہاں، ہاتھ پہ چلتے اپن. اور اسٹرانگ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو بنایا ہے نا. ہاں، پاؤں چلنے کے لیے ہے نا، کام ہی نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ اوپر دیے اور پاؤں نیچے دیے. اگر پاؤں اوپر ہوتے تو کوئی چیز کو کیسے پکڑتے ہم لوگ؟ ہاں، ہاتھ پیچھے کی جگہ کیونکہ اس کی فیٹ بھی نہیں ہوتی ایسے پیچھے. دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ بنایا. ایک تو بنایا اور پرفیکٹ بنایا. اور کیا کیا بنایا؟ صرف انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور کیا بنایا؟ ہوا بھی بنایا، ٹریز، ہاں ٹریز بھی بنایا، اور فروٹس بنائے، ویجیٹیبلز بنائے. کتنے ٹیسٹی فروٹس، کتنے اچھے ویجیٹیبلز. اور ایک بار یہ ورلڈ، ہاں، ورلڈ یہ ورلڈ بنایا، دنیا بنائی نا. اگر دنیا ہی نہیں ہوتی تو ہم لوگ سب کیسے جیتے ہیں؟ مون بنایا، سن بنایا، اور بتاؤ. اور اسکائی بنایا. اسکائی بنایا اللہ تعالیٰ نے. اینیملز بنائے، برڈز بنائے، ہاں، فشز بنائی، سورج بنایا. اللہ تعالیٰ نے کتنا 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 کچھ بنایا. اور سب چیز جو بنایا وہ کتنا اچھا بنایا. ہاں، کتنا پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام کیا ہے؟ زمین بنایا. زمین کے اندر بھی ہے الخالق. ہاں، بولتے کہ کوئی کہ ہم لوگ نے بنائے فروٹ، مطلب کہ ان لوگ نے محنت کیا، مطلب کہ اگایا. اور وہ محنت بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہو، دینے والا تو اللہ ہی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ. تو کتنے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ
हम लोग तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते हैं। सब लोग मिल जाएं, सारे इंसान मिल करके एक मक्खी नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो बनाया, अल्लाह ताला ने सारी चीजें बनाया। हाँ, सब चीजें लेके मिक्स करके मक्खी भी बनाओ, बेबी भी बनाया है। बेबी को अल्लाह ताला ने रिस्क भी दिया माँ के पेट में, हाँ, माँ के कोख में। और तो हम देखते हैं कितना कुछ दिया अल्लाह ताला ने। अल खालिक, अल खालिक याद रहेगा नाम इंशाल्लाह। बात करने के लिए। हाँ, अल्लाह ताला ने दांत दिए। अगर दांत नहीं होते, हाँ, टंग नहीं होती, हाँ, अगर मुंह तो होता लेकिन दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, एक बात दांत हम लोग को प्रॉपर टीथ देते हैं। हाँ। और बात करने में भी हेल्प करता है और वो चबाने में भी। यस, और अल्लाह ताला ने एक ही टाइप के दांत नहीं दिए, टंग दिए अल्लाह ताला और ने। अल्लाह ताला ने आइज बनाए, और कैसी आइज बनाई? लायन टाइगर नॉनवेज वाले लोग तो एकदम शार्प दांत ऐसे यस, लायन टाइगर के शार्प दांत, और एकदम गोट्स लोग के एकदम फ्लैट दांत, हाँ, फ्लैट दांत। और हमारे पास दोनों टाइप के दांत। दोनों टाइप के। अच्छा, आइज बनाई। अगर आइज के साथ आईलिड नहीं होती तो क्या होता? हमारे पास आईलिड नहीं होती तो हमारी आइज खराब हो जाती, मालूम है? तो अल्लाह ताला ने हमें आइज दी है। तो अल खालिक याद रहेगा नाम। अल्लाह ताला को आप पुकारते हो तो अल खालिक है अल्लाह ताला, द क्रिएटर, बनाने वाला, हाँ, तख्लीक करने वाला। अल्लाह ताला ने हमें कई कई टाइप के घर बनाते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। तो अल खालिक याद रहेगा इंशाल्लाह। सेकंड अल बारी। अल बारी जो है ना वो कनेक्टेड है, अल बारी यानी बनाने वाला। हाँ, अल्लाह ताला अल खालिक है, क्रिएटर, और अल बारी है, बनाने वाला है। अब दोनों में फर्क क्या है कि अल बारी के अंदर कितनी सारी अलग अलग टाइप की चीजें बनाने वाला। इन्वेंशन जो अल्लाह ताला के हैं सारे, सब अलग अलग किस्म की चीजें हैं। हाँ, मतलब सब एक टाइप नहीं है, सब अलग अलग। अल बरा लहू से बारी आता है, मतलब सब अलग 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 अलग, मतलब सब एक ही टाइप के नहीं है। हम हैं और मक्खी है, हमारे और मक्खी में बहुत फर्क है कि नहीं है? हम हैं और, हाँ, और हम लोग हैं और बहुत बड़ा लायन है, हाँ, बहुत बड़ा एलिफेंट है। तो हुदा में और एलिफेंट में फर्क है। यस, बहुत बिग है। हाँ, उसके एक एक लेग कितने बड़े हैं ना, मालूम? ट्री की ट्रंक, और अलग अलग टाइप का बनाया अल्लाह ताला ने। हाँ, अलबारी से कुछ उलमा ये भी बताते हैं कि ये मिट्टी से बनाना भी इसमें आता है। मतलब अल्लाह ताला ने कुछ क्रिएशन से भी दूसरे क्रिएशन बनाए, कुछ मखलूक में से दूसरी मखलूक बनाए। तो मिट्टी में से जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, और जैसे कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा बनाया इंसान को। थर्ड, तीसरा नाम अल मुसव्विर। अल मुसव्विर, अल मुसव्विर का मतलब क्या है? मतलब तस्वीर बनाने वाला, मतलब के फॉर्म बनाने वाला। अब देखो, मिसाल के तौर पे मैं ये सब ग्रीन पेंसिल्स ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, हाँ, चलो युस्रा पकड़ो, खुदा एक पकड़ो, एक आपके लिए, एक आपके लिए, और एक मेरे हाथ में। हम स्टार्ट कर रहे हैं। रखो अपनी अपनी पेंसिल यहाँ। अब आ रहा है? थोड़ा सा आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ आप। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर देता हूं। अब हुदा, इसमें से कौन सी पेंसिल हमजा भाई की है? टच करो, ऊपर से टच करो बेटा, नीचे से नहीं, ऊपर से। ये तो मेरी पेंसिल है। और उधर ने अपनी पेंसिल पकड़ी नहीं, पहली बात मैंने पकड़ा उसको। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमजा भाई की पेंसिल आप नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए मालूम है? क्योंकि सब दिखने में सेम दिख रही है। अगर मैं ऐसे 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 मिक्स करके कहूं क्या इसमें हमजा भाई की पेंसिल कौन सी है, बोलो कौन सी? हाँ, नहीं बोल सकते हैं, सब सेम दिख रही है। हाँ, अब देखो क्यों मालूम है? जिसने बनाया सब सेम बनाया। जरा सोचो, सारे करोड़ों करोड़ों करोड़ इंसान, दुनिया में कितने इंसान है मालूम है आपको? 750 करोड़। 750 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में कितने होते हैं मालूम है आपको? 100 lakhs होते हैं। और 1 लाख में कितने होते हैं? 100,000 होते हैं। और 1,000 में कितने होते हैं? 100 लाख। 1,000 के अंदर 1,000 होते हैं। हाँ, 1,000 में 1,000 ही कहेंगे। अगर सारे 750 करोड़ लोग सब सेम दिखते, अब्दुल्ला, सब के सब अगर सेम दिखते, तो हम लोग क्या करते हैं फिर? अब हम लोग 4 ही अगर सब सेम दिखते, सब के सब 5 लोग सेम ही दिखते, सेम। हाँ, इसीलिए हम लोग का नाम रखा गया। नहीं, अगर 5 सेम दिखते तो मालूम कैसे पड़ता हमजा कौन है, अब्दुल्ला कौन है, युसरा कौन है, हुदा कौन है, और मैं कौन हूँ? मालूम कैसे पड़ता? नाम तो कैसे मालूम पड़ता है मालूम है? आपने मिरर में अपने फेस देखा है? आपको कैसे मालूम पड़ता है आप हमजा हो?
क्योंकि मेरा फेस अलग है। आपका फेस देख के समझ में आता है ना आप हमजा हो। अगर सब 750 करोड़ लोगों का सेम फेस होता तो क्या करते हैं हम लोग, और सिर्फ 750 करोड़ इंसान नहीं, सोचो सारे के सारे जानवर भी और इंसान सब एक जैसे दिखते, सारे करोड़ों जानवर, सब जानवर, डॉग भी वैसा ही दिखता है, कैट भी वैसी ही दिखती है, काऊ भी वैसी दिख रही है, गोट भी वैसा ही दिख रहा है, शीप भी वैसे दिख रहे हैं, लायन भी, सब लोग सेम दिख रहे हैं, हाँ, और सब इंसान भी वैसे ही दिख रहे हैं, और फिशेस भी वैसी दिख रही। तो क्या होता, आप इंसान हो के लायन हो, आप इंसान हो के गोट हो, वो मालूम ही नहीं पड़ता। अगर गोट और इंसान सेम दिखते तो कैसे मालूम पड़ता, पता है आपको? जैसे ये गोट ग्रास खाती है, अभी तो देखना पड़ता कि अब ये ग्रास खाएंगे तो गोट है, और ग्रास नहीं खाएंगे तो इंसान है शायद। देखो अब ये अल्लाह ताला ने बनाया कि आप गोट को पहचान सकते हो देख करके गोट है, पहचान सकते हो कि नहीं? आपको गोट कैसा दिखता है मालूम है? आपको गोट पहचानने आता है? अगर आप जैसे मिरर में दिखते हो गोट भी ऐसा ही दिखता तो आप पहचानते गोट को? आप मिरर में देख रहे हो कि गोट है कि हमजा है, मालूम कैसे पड़ता? हाँ, तो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अल मुसव्विर। अल मुसव्विर का मतलब क्या है मालूम है? तस्वीर बनाने वाला। अल्लाह ताला ने गोट की अलग तस्वीर बनाई, लायन अलग दिख रहा है, इंसान अलग दिख रहा है, इंसान में हमजा अलग दिख रहा है, अब्दुल्ला अलग दिख रहा है, यूसरा अलग दिख रही है, हुदा अलग दिख रही है, सेम दिखते तो फिर क्या होता, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं हमारे, कंफ्यूजन हो जाते हैं। बिल्कुल, बॉयज भी अलग दिखते हैं और गर्ल्स भी अलग दिखते हैं। हाँ, पर हम लोग इंसान का तो जान लेंगे क्या? अरे सब इंसान पे लिख के रखना पड़ता, टॉप पे फेस पे नाम लिखना पड़ता, अब्दुल्ला, हमजा, सबको लिख के रखना पड़ता, और वो भी सेम दिखते, पीछे से नहीं पहचान सकते, जाके देखो अब्दुल्ला है कि हमजा है। हाँ यश और नील थे छोटे छोटे, ट्यूशन में आते, कोई मालूम है? दोनों काले, दोनों का बैग भी सेम है, कुछ मालूम नहीं पड़ता, सेम ही जोड़े के कपड़े पहन के आते, कोई यश है कोई। अब एक दो ट्विन ही हो तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, आप लोग अगर ट्विन देखो, जुड़वा, वो दोनों सेम दिखते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम हो जाता है। सबके सब 750 करोड़ इंसान, करोड़ों जानवर, करोड़ों परिंदे सब एक जैसे दिखते तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता। तो अल्लाह ताला के नामों में से नाम है अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला, फॉर्म्स बनाने वाला। देखो अल्लाह ताला ने जो बनाया उसमें से किसी चीज को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, किसी की शक्ल कैसी बनाई, अल्लाह ने अलग अलग शक्ल बनाई, किसी को ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया, किसी को कम बनाया, वो भी टेस्ट है, इम्तिहान है। हाँ, अल्लाह चाहते हैं तो सबके सब ब्यूटीफुल दिखते हैं। वो बोल दे कि तू तो कितना गोरा दिखता, मैं तो काला हूं, कितना अनलकी हो, ऐसा कुछ। हाँ, अनलकी बोलते हैं, अनलकी बोलना गलत है, ये अल्लाह ने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाशुक्री नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये सब बातें देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। कोई बोलते हैं कि तुम्हारा घर कितना गंदा है, हम लोग का कितना साफ है। हाँ, तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साफ रखना चाहिए घर को। आज कल बैड डे होएगा, ऐसा होएगा, वो भी नहीं, गुड एंड बैड अल्लाह के हाथ में। तो हमने 3 नाम देखे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या 3 नाम? अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर। याद रहेगा इंशाअल्लाह। सब नाम एक बार रिपीट करके ब्रेक लेंगे। और रहमान, और रहीम, साथ में अल मलिक, कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर। वक्त हो गया है ब्रेक का, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पूछो तो सही, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप देख रहे हैं, i+ टीवी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात 24 घंटे बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस काम को जारी रखने के लिए आपके साथ की जरूरत है। हमने ये अंदाजा लगाया कि अगर हमारे सारे व्यूअर्स अपने माहाना अखराजात में से सिर्फ 100, 500, 1000 जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट दें तो इंशाअल्लाह हम ये काम बहुत आसानी से जारी रख सकते हैं। तो आइए नेक काम में आगे बढ़ें। अभी कॉल करें और i+ टीवी के मंथली सपोर्टर बनें। i+ टीवी के सपोर्टर बनने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर।
बात आपके अपने टीवी चैनल की है। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम से। ये गेम में चैलेंज ये है कि आपको ये बास्केट अपने सर के ऊपर रखना है, आंखें बंद करना है और चम्मच से, ये सिंपल है, रुई के बॉल उठाकर उस बास्केट में डालना है। जितने रुई के बॉल गए आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे और जो नहीं गए तो वो पॉइंट नहीं मिलेंगे। आंखें बंद, ये सर के ऊपर। आप हाथ से पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन एक हाथ से पकड़ना ताकि दूसरे हाथ से चम्मच से डाल दो। ओके, कौन सबसे पहले करेगा? अब्दुल्ला सेड दिस फर्स्ट। अब्दुल्ला, आईज आपकी बंद होनी चाहिए, कैमरा आपको देख रहा है, आपकी आईज के अंदर ही दिखेगा कैमरा, डायरेक्टली बता देंगे वो लोग। हाँ, इसके अंदर टाइम लिमिट है 30 सेकेंड्स। ऑन योर मार्क, गेट सेट, बिस्मिल्लाह। No opening your eyes, Abdullah. Time up. Stop. Abdullah ने डाले टोटल कितने? No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अब्दुल्ला ने 7 balls of cotton उठाए इतनी एफर्ट में। ओके, who's next? कौन नेक्स्ट है? युसरा is next. On your mark, get set, bismillah. Eyes closed. देख रहे हो? Eyes, time up. टाइम अप बोलने के बाद अपने डाले, वो काउंट नहीं होगा। दो हाँ, 2 डालना। टोटल 2। ये बाद में आया, हाँ? नहीं, ये दो एक साथ है। अभी लास्ट में आया ना 2। तो मतलब कितने थे पहले से? 1 थे कि 2 थे? 1 युसरा को मिले 1 पॉइंट। नो प्रॉब्लम, आपने ट्राई किए और मैं आप सबको एक बहुत प्यारी बात लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए आगे सब। कौन नेक्स्ट है? मैं। नेक्स्ट है हमजा। आइज क्लोज्ड। हाँ, वेट मिनट, पहले आप ये अरेंज कर लीजिए। वेट, आइज क्लोज्ड। ऑन योर मार्क, गेट सेट, बिस्मिल्लाह। टाइम अप। और हमजा को मिले टोटल 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब्दुल्ला को मिले 7, हमजा को मिले 6, युसरा को मिले 1 एंड लास्ट में कौन है? खुदा। हुदा। हुदा इज रेडी? ओके, वेट, आईज क्लोज्ड। वेट, लेना है। हाँ, ऑन योर मार्क, गेट सेट, बिस्मिल्लाह। Eyes, don't open your eyes. Don't open your eyes.
टाइम अप। हुदा के गए टोटल 3। हुदा गॉट 3। तो ये गेम से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? क्योंकि अगर आइस नहीं आएगी तो क्या ओके, आइस की इंपॉर्टेंस सीखे हम लोगों ने। उधर चले जाते बिल्कुल। इधर के। और क्या पता चला आपको? और क्या आइस नहीं होती तो हम लोग दीवार से टकरा सकते। कोई लोग एक बड़ी स्टिक लेके ऐसा प्लैंक्स मान के ऐसा। ठीक है। और कोई आइस नहीं होती तो कोई और लेकर जाता है उसको। हाँ अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी बात बताना चाहता हूँ, सुनो। पता है आपको, आप जब लेके जा रहे थे ना, तो कितनी बार आपका चम्मच खाली जा रहा था? देखा आप लोगों ने दूसरों का? ऐसा लग रहा था आपको कि मैंने तो डाल दिया, लेकिन हकीकत में खाली था। बस ऐसे ही करके डाले डाले डाले, लेकिन कितनी बार तो खाली था। हाँ, पता है आपको, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कहाँ होता है मालूम है? कितनी बार हम लोगों को नेकी करने जाते हैं, नेकी। हाँ अब्दुल्ला, हमजा, नेकी करने जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि मैंने तो ये नेकी कर ली, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं मिला। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं जिससे वो नेकी कैंसिल हो जाती है, यानी कि वो खाली हो जाता है। वो क्या है पता है आपको? हाँ। आपकी नीयत। नीयत आपको पता है, हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? हाँ, अच्छी। किसके लिए करना चाहिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार, मतलब बेसिस नीयत पर है। आमाल किसके ऊपर है? नीयत पर। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह सिर्फ वो अमल कबूल करता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला कौन से अमल कबूल करते हैं? जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अच्छा, मुझे कोई गलत नियत बताओ। गलत नियत बताओ अभी। गलत नियत। गलत नियत मतलब कि जैसे कि वो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा औरों के लिए करना। किसी और के लिए शिर्क करते हैं, ठीक है, वो एक बात हो गई। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। हाँ। बोलता है अल्लाह के शिर्क करते हैं, फिर बोलता है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फिर वो सच्चे दिल से नहीं पढ़ते। ओके ओके, तो फिलहाल देखो, आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ। पता है आपको, कुछ गलत नियतें, जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है लोगों को दिखाने के लिए। नमाज पढ़ रहे हैं क्यों? ताकि सब लोग देखेंगे मैं कितनी नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ, खुश होंगे। और सब लोग बोलेंगे आह हमजा, अब्दुल्ला, युसरा, हुदा, तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। तो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ना सही है गलत है? गलत। क्यों? किसके लिए नमाज पढ़ना चाहिए? अल्लाह के लिए। फिर कोई है जो सदका दे रहा है, कोई है जो सदका दे रहा है, बोले दिखाऊंगा मैं सबको मैं कितने पैसे देता हूँ। हाँ, लोग बोलेंगे कितना दयालु है, कितना चैरिटेबल है। हाँ, लोग मेरी वाह वाह कहेंगे। तो ये जो कर रहे हैं तो सही है गलत है? गलत है। क्यों? सदका किसके लिए देना चाहिए? हाँ, किसके लिए देना चाहिए? अब इनका क्या मामला? नमाज तो पढ़े, उनको ऐसा लग रहा है मिल गया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। खाली। सदका दिए लेकिन कुछ मिला नहीं मिला। कोई लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई बीमार पड़ा तो उसके लिए सदका रहता है, उसे रोज रोज नहीं देते यार। यस, तो आप लोगों को मैं बात बता रहा हूँ। अब आप लोग देखो, ये सीख रहे हो, ये किसके लिए सीख रहे हो? अल्लाह के लिए। अगर आप लोगों की नियत में आ जाए, हाँ मैं इसलिए करूंगा ताकि मुझे स्टिकर मिले, हाँ, या मैं टॉय के लिए कर रहा हूँ, तो वो स्टिकर और टॉय लेना जायज है आपके लिए, लेकिन आपका मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद क्या होना चाहिए? लोग को खुश करने के लिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गोल क्या है? गोल मकसद, हाँ, जन्नत। जन्नत। जन्नत होना चाहिए। यस, और बच्चे अगर सही रास्ते पे आ जाए, बच्चे लोग वो भी सही चीज सीखेंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी सही चीजें सीखे। अब टीवी पे देखने वालों का भी यही नियत होनी अगर चाहिए। हम लोग किसी को नहीं आता है बच्चे लोग को, तो हम लोग सिखाएंगे तो हम लोग को भी सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो सिखाने की नियत होनी चाहिए, सीखने की नियत होनी चाहिए, लेकिन दिखावे की नियत होनी चाहिए नहीं। अच्छा, दिखावे के लिए कोई भी अच्छा काम करे तो अल्लाह ताला वो अमल कबूल नहीं करेगा। हाँ, तो आप लोग ऐसा करेंगे अपनी जिंदगी में, वेस्ट कर देंगे। कोशिश भी किए, मेहनत से ऊपर लेके गए, डाले, लेकिन खाली खाली था। और कब मालूम पड़ेगा मालूम है कि कितना जमा है? कब मालूम पड़ेगा मालूम है? कयामत के दिन मालूम पड़ेगा कि आपकी बास्केट में कितनी नेकी है और कितना सब तो आपने डाले लेकिन खाली खाली डाले, कुछ जमा नहीं हुआ। वो कब पता चलेगा? कयामत के दिन पता चलेगा। ये एक छोटा सा लेसन था हम सबके लिए आज के इस तज़किया सेक्शन में। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, देखते रहिए प्रोग्राम। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।